So first I'll give Prabhuji official introduction and then unofficial introduction. So His Grace Jagadish Shyam Prabhu studied Master of Computer Applications from Maharshi Dayananda University in Rohtak. And then he worked as senior software engineer for almost 10 years in domestic and multinational companies. He joined ISKCON in the year 2013 as a full-time monk. And then from 2014 to 16 for 2 years, Prabhuji was general manager at ISKCON Patna. And then from 2016 onwards till now, almost for 8 years, he has been temple president at ISKCON Gaya. Seeing his abilities, he was sent to Gaya for opening a center. And then not only center, it developed, grew further. And just from that one place, one preaching center, Prabhuji has extended in the same city 2 more centers and 5 more centers in adjacent cities. And he has given many seminars like art of mind control, art of stress management, overcoming anger, absolute necessity of spirituality, etc. in various organizations like Delhi University, NIT Patna, Gaya Engineering College, Central University, SBI, Indian Medical Association, etc. So this is official introduction, as I read out. Unofficial is, as I know, I had the fortune to be with Prabhuji for 2 months in the IELTS course, and I was very much touched. If you guess Prabhuji's age, any guess? Age कितना है Prabhuji? कुछ any guess? Prabhuji is 47 now. So it doesn't look that way, and at the same time by nature is very down to earth, very friendly, though I am very junior to him, 15 years junior to him, but still he considers me just like a friend. I'm like his younger brother. Very down to earth, very touching, very shastric, very deep, very sensitive in dealings, and seeing all his abilities. Though he joined in the year 2013, he was given very big managerial post. Now I'm sure Prabhuji is going to speak about post and position nahi hona chahiye, but his abilities are that way. If you know, ISKCON is for better management divided into 4 zones in divisions in Bharat: Eastern Division, Western Division, Southern Division, and Northern Division. So that's called, ours is called WIDC, Western India Division Council. So similarly, there is Eastern India Divisional Council of ISKCON, where many states come together. And of all these ISKCON temples in Eastern India, Prabhuji has been serving as chairman of EIDC, ISKCON India Divisional Council. And then unanimously, there is Prabhuji and there's one more devotee, Madhav Kant Prabhu. One by one, Prabhuji ka fix hai. Ye aayenge, ye wo aayenge. That capable devotees. And at the same time, very sincere. Just day before yesterday, 2 days back, when I spoke to Prabhuji, I was requesting for class. And I had a long talk. I just requested for class and one more thing, but I got almost 1 hour of nectar of realizations. And he was saying that on this post and position, in 8 years he has been serving. Now he said in next 1-2 years I have to train all the devotees, and they will take care of all the 7 centers plus Gaya 8 centers. And then I want to just study Shastra and nourish devotees. So I asked devotees what topic you want to hear, and devotees suggested that Prabhuji na dhanam na janam na sundari mala. So Prabhuji is very apt for that. And along with that, he has big vision. Big vision means big vision. Just like there is statue of equality and statue of unity, similarly, he has a desire to open statue of devotion of Chaitanya Mahaprabhu in Gaya, because Gaya is the place where Chaitanya Mahaprabhu got initiated. So he has a big vision. He already has seen the land also, big plot and big vision unfolding. He has done big youth festival. So big vision, an asset for Srila Prabhupada's mission and inspiration for many devotees. As a team of brahmacharis whom he leads, we are very fortunate to get an opportunity to be able to hear from Prabhuji. So let us welcome Prabhuji, His Grace Jagadish Shyam Prabhu, by heartily, loudly chanting Hare Krishna Mahamantra. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Hare Rama, Hare Rama, Rama Ram, Rama, Hare Hare. Hare. Yes, Prabhuji, over to you. Thank you so much for your kind blessings, for your kind words. One correction that I'm not working as chairman of EIDC. Now, chairman is Narugopal Prabhu. And so, yes, I'm just working as a servant leader at ISKCON Gaya, and also taking care of some centers nearby, adjacent centers. So
Just I'll take 10 seconds. Just I need to switch on some light. हरी हरी। Hare Krishna. Am I audible? Yes. Okay. I'll start with Mangalacharan prayers. Om Ajnanatimirandhasya Jnananjanasalakaya Chakshurumidam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manobhishtam Stapitam Jena Bhutale Swayam Rupa Kada Mahyam Dadati Shopadantikam Vandeham Shri Guru Siyutapadakamalam Shri Gurun Vaishnavams Shri Rupam Sagrajatam Sagana Raghunathanvitam Tam Saji साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादां सहगण ललिता श्रीविशाखान्तांश हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्तुते तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नामिने नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे गंगरति वाचालं भंगं लंघयति गिरिं यत्कृपातमं वन्दे श्रीगुरुविनतारिणे श्रीचैतन्येश्वरं परमानन्दं। हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद। आवाज इको हो रहा है, मेरे पास आ रहा है। हरे कृष्णा। अभी नहीं होगा कुछ। हाँ, ओके, थैंक यू। सो ये मेरा सौभाग्य है कि आप सब भक्तों का सेवा करने का मुझे अवसर प्राप्त हो रहा है। तो मैं प्रयास करूंगा आप सबका जो है सेवा करने के लिए अगले जो भी आधा घंटा 40 मिनट है हमारे पास, और जिस माध्यम से मैं अपने आप को शुद्ध करूंगा और आप सब का जो है आप सब से आशीर्वाद लूंगा। सो आज हम डिस्कस करेंगे शिक्षाष्टकम का 4th वर्ष। सो आगे हम अबाउट 30 मिनट्स हम डिस्कशन करेंगे और 10 मिनट्स हम रखेंगे फॉर क्वेश्चन एंड आंसर।
विजिबल है? स्लाइड विजिबल है? Yes, please. तो आप सब मेरे पीछे रिसाइट कर सकते हैं। न धनम न जनम न सुंदरीम कवितां वा जगदीश कामये रामाय जन्मनि जन्मनीश्वरे निजम करी पुत्राद् भक्तिरहेतुकी त्वयि प्रजापति संदीप प्रभु, कैन यू रीड आउट द ट्रांसलेशन? यस प्रभु। हरे कृष्णा। ओ ओ ओ जगदीशा, Lord of the universe, I don't desire wealth, followers, or beautiful praise. In my heart, I only desire was less bhakti up to your birth after your birth, you birth after birth. हरे कृष्णा। तो चैतन्य महाप्रभु यहाँ पे कह रहे हैं कि हे सर्वसमर्थ जगदीश, मुझे धन एकत्र करने की कोई कामना नहीं है, ना मैं सुंदर स्त्री सालंकार कविता का ही इच्छुक हूँ। मेरी तो एकमात्र कामना है कि जन्म जन्म आपकी अहित की भक्ति बनी रहे। तो इसमें हम देखेंगे कि 5 ऑब्स्टैकल्स ऑफ भक्ति, 5 ऑब्स्टैकल्स ऑफ भक्ति। एक है कि धनम, वेल्थ, मटेरियल वेल्थ, जन्म, फॉलोअर्स, एंड स्त्री, स्पाउस, कविता, स्कॉलरशिप, एंड जन्मनी जन्मनी, दैट मीन्स लिबरेशन, वॉन्ट फॉर लिबरेशन, मोक्ष की प्राप्ति की इच्छा। तो एक एक करके हम डिस्कशन करेंगे। धनम, जन्म, सुंदरीम, कविताम और जन्मनी जन्मनी। सो धनम, देखा जाए तो ये जो 5 चीज है, ये 5 चीजों में सबसे खतरनाक ऑब्स्टैकल जो है वो है धनम, अर्थात मटेरियल वेल्थ। कुंती महारानी श्रीमद् भागवतम में पहला स्कंद 8वां अध्याय के 26 नंबर श्लोक में बता रही है, आप मेरे पीछे रिपीट कर सकते हैं। जन्मेश्वर्य श्रुत श्रीभीर एधमान मदः पुमान् दैवाहर्ति अभिधातुं वै त्वम् अकिंचन गोचरम्। मेहता प्रभु, आई थिंक पार्थिस मेहता प्रभु, कैन यू रीड आउट द ट्रांसलेशन? My lord, your lordship can easily be approached, but only by those who are materially exhausted, because one who is on the path of material progress, trying to improve himself with a respectable percentage, with opulence, high education, and bodily beauty, cannot address you with sincere feeling. थैंक यू। सो यहाँ पे कुंती महारानी प्रार्थना कर रही है कि आपका जो, आपको वही अप्रोच कर सकता है जो क्या है, मेटेरियली एग्जॉस्टेड, अकिंचन गोचरम, अर्थात he is not, he or she is not dependent on any material opulence। क्या क्या है material opulence? पेरेंटेज,
जन्मेश्वर्य, जन्म और ऐश्वर्य। पेरेंटेज मतलब कि मैं इस स्कूल का हूँ, मैं उस स्कूल का हूँ, या मैं ब्राह्मण हूँ, हम्म, या मैं क्षत्रिय हूँ। और ग्रेट ऑपुलेंस, ऑपुलेंस ऐश्वर्य, अर्थात धन। और क्या है? हाई एडुकेशन, बहुत ज्यादा, मतलब मैं एडुकेटेड हूँ। श्री भीर, बॉडीली ब्यूटी, मैं बहुत सुंदर हूँ, मैं गोरा हूँ, मैं लंबा हूँ, हम्म, या है ना, फिजिकली फिट हूँ। तो ये जो है, ये क्या है? ये जिसके पास है, तो वो क्या कर नहीं कर सकता है? अप्रोच नहीं कर सकता है, भगवान जी को अप्रोच नहीं कर सकता है। अगर क्या है? एधमान मदह पुमान, अगर वो जो है इसी में, इसी चीजों में वो पागल है, मदह, पुमान, अगर इसी में वो आसक्त है, या यही उसका भरोसा है, तो वो भगवान जी को अप्रोच नहीं कर सकता, ऐसे कुंती महारानी कह रही है। तो देखा जाए तो एक्चुअली जो है धन, ये ये चीज ऑब्स्टैकल नहीं है। ये ना एक क्वालिफिकेशन है, ना एक डिस्क्वालिफिकेशन है। धन जो है, मतलब ऐसा नहीं कि धन होगा तो हम भक्ति कर सकते हैं, या धन होगा तो हम भक्ति नहीं कर सकते हैं। बट थिंग इज दैट कि हम इसको किसका मान रहे हैं, है ना? धन हो, जन हो, या सुंदरी हो, या कविता हो, है ना, ये सारा को हम किसका मान रहे हैं? अगर हम हमारे अंदर प्रोप्राइटरशिप मेंटेलिटी है, तो फिर ये सब जो है हमारे लिए क्या है? एक ऑब्स्टैकल है। लेकिन वही चीज अगर हम भगवान जी का मान रहे हैं और भगवान की सेवा के लिए लगा रहे हैं, देन ये हमारे लिए ऑब्स्टैकल नहीं है। हम्म। तो ये ना एक क्वालिफिकेशन है, ना एक डिस्क्वालिफिकेशन है, बट हाउ वी आर यूजिंग इट, दिस opulences, दैट डज मैटर। कि हम किसकी सेवा में लगा रहे हैं? भगवान की सेवा में लगा रहे हैं, या अपनी सेवा में लगा रहे हैं? जब हम अपनी सेवा में लगा रहे हैं, दैट बिकम्स ऑब्स्टैकल। बट जब हम इसको भगवान की सेवा में लगा रहे हैं, देन इट डजंट बिकम एन ऑब्स्टैकल। तो आगे फिर हम देखते हैं। तो इसी प्रकार ये कुंती महारानी कह रही है। उसी प्रकार श्रीमद् भागवतम 10.16.37 में बताया गया है, आप मेरे पीछे दोहरा सकते हैं। न नाक पृष्ठम, न च सार्वभौमम्, न पारमेष्ठ्यम, न रसाधिपत्यम, न योग सिद्धिर अपुनर्भवम् वा, वाञ्छन्ति यत्पादरजः प्रपन्नाः। कोई पढ़ सकते हैं आपके ग्रुप में से ट्रांसलेशन? Those who have attained the dust of your lotus feet never hanker for the kingship of heaven, liberation, sovereignty on earth, the position of Brahma or rulership over the lower planetary system. They are interested even in the perfection of yoga or in liberation itself. थैंक यू। तो कह रहे हैं कि जो है
Those who have attained the dust of your lotus feet never hunger for kingship of heaven. हम्म? उनको स्वर्ग नहीं चाहिए होता है। जो भगवान के चरण कमलों में आश्रित हो गए हैं, या भगवान के चरण कमलों को प्राप्त कर चुके हैं, तो उनको ये स्वर्ग और ये संसार में जो है बहुत ज्यादा धन संपत्ति, या ब्रह्मा जी का जो पोजीशन है, हम्म, या आ, क्या है, रसाधिपत्यम, अर्थात ठीक है, मतलब आपको ऊपर वाला प्लानिटरी सिस्टम नहीं चाहिए तो नीचे वाला चाहिए क्या? ना 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 ना, न रसाधिपत्यम है, लोअर प्लानिटरी सिस्टम उनको नहीं चाहिए होता है कि नहीं? दे आर नॉट इंटरेस्टेड इवन इन परफेक्शन ऑफ योगा और लिबरेशन इटसेल्फ। जैसे लिबरेशन, हम मोक्ष की बात करेंगे, तो वो मोक्ष की कामना भी नहीं करते हैं जो लोग भगवान के चरणों में समर्पित हो जाते हैं, भगवान के चरणों को जो प्राप्त करते हैं। क्योंकि भगवान के चरण को, है ना, जो भजन करते हैं या स्मरण करते हैं, तो उनको और कोई कुछ चाहिए नहीं होता है। हम्म, क्योंकि उनके अंदर जो है वो वो ज्ञान प्राप्ति होता है उनकी, जो है कपिल भगवान कह रहे हैं कि ज्योत्स्नाभिर आहत महत हृदयांधकारम। जो भगवान के चरण कमलों का जो ज्योत्सना है, जो जो लाइट है, वो क्या करता है कि हृदय के महत अंधकारम, जो हृदय में जो महत अंधकार है, जो डीप डार्कनेस है, उस डीप डार्कनेस को वो रिमूव कर देता है, और आलोकित कर देता है हृदय को। तो फिर उसको जो है ये सब कुछ चाहिए नहीं होता है। एक्चुअली ये क्यों हो रहा है कि अज्ञानता के कारण, धनम जनम सुंदरीम कविताम, ये अज्ञानता के कारण है ना? तो जब भगवान के चरणों में कोई आश्रय लेता है, फिर मेरी आवाज इको होने लगा, तो फिर उसको जो है, ये सब नहीं चाहिए होता है ना? आगे हम देखेंगे श्रीमद् भागवतम 10:10:8। नारद उवाच, नारद जी जो है अ, कुबेर के दो पुत्र उनको कह रहे हैं, नल कुबेर और मणिग्रीव को कह रहे हैं, न ह्यन्योज सतोजस्यान् बुद्धिभ्रंशो रजोगुणः रजोगुणा श्रीमदाद अभिजात्याधीर श्रीमदाभिजात्यादिर् यत्र स्त्रीद्युतम् आसवः। तत्र श्रीयुतमाशवा। प्रजापति प्रभु। Yes, Prabhu. Hare Krishna. Hare, Narad Muni said, among all the attractions of the material enjoyment, the rich bewilders one's intelligence more than having beautiful bodily features, taking birth in an aristocratic families, and being learned when one is uneducated but falsely puffed up by the wealthy wealth. The result is that one anchors his wealth in enjoying wine, human, and gambling. Hare Krishna. क्यों कह रहे हैं कि among all the attractions of material enjoyment, the attraction of riches builders one's intelligence more than having beautiful bodily features, taking birth in aristocratic family। मेरी आवाज इको हो रही है। एंड बीइंग लर्नेड, तो कह रहे हैं कि ये जितने भी चीज है उसमें से सबसे खतरनाक क्या है? धन। हम्म? धन जो है वो सबसे खतरनाक है। क्यों? क्योंकि ये धन होने से व्यक्ति क्या करने लगता है?
When one is uneducated but falsely puffed up by the wealth, the result is that one engages in his wealth in enjoying wine, women and gambling. जब धन आता है ना किसी के पास, तो फिर वो क्या करने लगता है? शराब पीने लगता है, स्त्री का संग करने लगता है, और गैम्बलिंग भी करता है, जुआ खेलने लगता है। तो ये जो धन है, ये धन क्या कर देता है? व्यक्ति को पागल कर देता है। कौन व्यक्ति को? वन इज अनएडुकेटेड बट फॉल्सली पफ्ड अप बाय द वेल्थ, जो जो जिसके अंदर ये ज्ञान नहीं है कि धन को कैसे यूटिलाइज करना चाहिए। धन मतलब क्या है? धन मतलब तो लक्ष्मी है ना। धन को हम लक्ष्मी कहते हैं। तो लक्ष्मी जी को किनकी सेवा में लगाना चाहिए? भगवान की सेवा में लगाना चाहिए, नारायण की सेवा में लगाना चाहिए, है कि नहीं? अगर धन को अगर हम अपनी सेवा में लगाते हैं तो हम भी जो है रावण बन जाते हैं। जैसे रावण क्या किया था? जो लक्ष्मी है, सीता माता, उनकी अपनी जो है अपनी सेंस ग्रेटिफिकेशन के लिए वो जो है लगाना चाह रहा था, है कि नहीं? तो उसी प्रकार जब धन को जो है हम अपनी सेवा में लगाएंगे तो हम भी जो है क्या बन जाएंगे? रावण बन जाएंगे, है ना? क्योंकि धन क्या है? तो लक्ष्मी है। जन्म जन्म मतलब क्या है? फॉलोअर्स। आजकल आप देखे होंगे, हैं? सब लोग कहते रहते हैं लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए, है कि नहीं? कमेंट कमेंट लिखिए, बेल आइकन दबाइए, है कि नहीं? दिस इज व्हाट जन्म, फॉलोअर्स। तो एक्चुअली देखा जाए फॉलोअर्स तो है, जैसे हमारे आचार्य है, आचार्य के कई फॉलोअर्स थे। अब देखिए रामानुजाचार्य है, रामानुज के कई शिष्य थे, कई फॉलोअर्स थे। बट आचार्यों के पास जो फॉलोअर्स है, दे आर एक्चुअली कृष्णाज फॉलोअर्स। दे आर नॉट दे आर नॉट द फॉलोअर्स ऑफ दैट आचार्य। जैसे हमारे श्रील प्रभुपाद जी है, उनके भी फॉलोअर्स है, बट दे आर एक्चुअली कृष्णाज फॉलोअर्स हैं। तो जैसे कल कल ही गया श्रीपाद माधवेंद्रपुरी जी का तिरुभाव दिवस गया, और श्रीपाद माधवेंद्रपुरी हमारे संप्रदाय में एक महान आचार्य है, चैतन्य महाप्रभु के दादा गुरु है। तो श्रीपाद माधवेंद्रपुरी जब गोवर्धन में उनको अ, गोपाल जी कहे कि मैं तो बहुत दिनों से झाड़ी में था, गर्मी में था, तो इसलिए आप मलय देश जाओ और मलय देश से जो है चंदन लेकर आओ, और उस चंदन को आप घिस के मेरे शरीर में लेप करेंगे तो मुझे जो है ठंडक लगेगा। तो माधवेंद्रपुरी थे तो अयाचक वृत्ति के, तो चल पड़ते हैं गोवर्धन से जगन्नाथपुरी की ओर। और जाते जाते वो रेमुणा में पहुंचते हैं, और रेमुणा में जो है गोपीनाथ जी का दर्शन करते हैं। तो गोपीनाथ जी का दर्शन करते हैं, और गोपीनाथ जी को भोग लग रहा था, तो उनको भी मन करता है कि इस प्रसाद को, अमृत के लिए खीर का भोग लगता है रेमुणा में, तो अगर ये मुझे चखने के लिए मिल जाता तो मैं भी अपने गोपाल जी के लिए वही बनाता। लेकिन बाद में फिर उनको ग्लानि होती है कि नहीं, ऐसा मुझे नहीं करना चाहिए था, क्योंकि जो है भगवान जी को भोग लग रहा था। तो वो उस काम से हट जाते हैं और जाके भगवान जी का भजन करने लगते हैं। लेकिन गोपीनाथ क्या करते हैं? उनके लिए एक जो है कुल्हड़ खीर का, अमृत के लिए खीर जो रबड़ी है, उसको छुपा देते हैं। और रात को क्या करते हैं? पुजारी को सपने में आके कहते हैं कि मेरा प्रिय भक्त है माधवेंद्रपुरी, उसके लिए मैंने एक खीर का प्याला जो है छुपा के रखा हूं, तुम जाओ और उसको दो। तो पुजारी सुबह सुबह दौड़ दौड़ के जाता है, स्नान करके
मंदिर का जो है दरवाजा खोलता है और अंदर जाके देखता है कि सही में जो है वो खीर का प्याला रखा हुआ था। तो पुजारी उसको लेकर जाता है और पुकारता है कि कौन है माधव त्रिपुरी, आपके लिए जो है भगवान ने चोरी किए हैं। तो माधव त्रिपुरी कहते हैं हाँ हाँ मैं हूँ। और जाके जब माधव त्रिपुरी को देते हैं कह कि देखिए आप बहुत भाग्यशाली हैं, आपके लिए भगवान ने चोरी कर लिए जो है खीर। तो माधव त्रिपुरी पहले तो बहुत प्रसन्न होते हैं लेकिन बाद में दुखी हो जाते हैं कि एक तो भगवान जो है को अब चोर चोर कहेंगे, और फिर वो सोचते हैं कि अरे अब तो मेरा फॉलोअर बढ़ जाएंगे, लोग जो है मुझे मतलब मेरे पीछे दौड़ेंगे, इनके लिए चोरी किया है, इनके लिए भगवान ने चोरी किया है, ये जरूर महान व्यक्ति है। तो इसलिए वो तुरंत उस जगह से भाग के चले जाते हैं, कहाँ, जगन्नाथपुर। लेकिन ये तो भगवान जी का ही प्लानिंग था, है ना। नहीं तो भगवान अगर चाहते तो जैसे गोवर्धन में भगवान जो है एक छाछ का मटका लाके दिए थे, तो यहाँ पे भी खीर लाके दे सकते थे। लेकिन पुजारी के माध्यम से करने का मतलब यह है कि भगवान चाहते थे कि माधवेंद्रपुर के यश बढ़े और माधवेंद्रपुर के फॉलोअर बढ़े। हम्म, ताकि माधवेंद्रपुर के फॉलोअर बढ़ेंगे तो जो है वो शुद्ध होंगे। और वो भी भगवान के साथ ही कनेक्टेड होंगे। लेकिन जब माधवेंद्रपुरी जगन्नाथपुरी पहुंचते हैं, वो यश भी जो है वो जगन्नाथपुरी पहुंच जाता है उससे पहले। और जगन्नाथपुरी में सब लोग जानते हैं कि माधवेंद्रपुरी के लिए गोपीनाथ जी ने रेमुणा में खीर चोरी किए थे। हम्म। वैसे चैतन्य महाप्रभु जब एक बार आ, गोपियों का नाम उच्चारण करते हैं, गोपी 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 करके नाम उच्चारण करते हैं और रोते रहते हैं, तो उसी समय एक उनके शिष्य वो आता है और कहता है कि आप निमाय निमाय पंडित, आप गोपियों का नाम क्यों ले रहे हैं? शास्त्र तो कहता है कि कृष्ण का नाम लेना चाहिए, आप गोपियों का नाम ले रहे हैं। तो महाप्रभु देखते हैं कि ये जो है क्या हो रहा है कि भगवान जी का नाम जितना महत्वपूर्ण है और उसी प्रकार उनके भक्तों का नाम भी उतना महत्वपूर्ण है। जैसे हम भगवान जी का नाम लेके शुद्ध हो सकते हैं और उसी प्रकार भगवान जी का भक्तों का नाम भी लेके हम शुद्ध हो सकते हैं। लेकिन यहाँ पे ये क्या कर रहा है, ये जो है भेद कर रहा है कि भगवान के नाम और गोपियों के नाम में। तो महाप्रभु जो है उसको मारने के लिए दौड़े, तो वो दौड़ दौड़ के गया और सबको ऐसे बोल दिया कि देखो गोपी का नाम ले रहे थे और मैंने जब कहा कृष्ण का नाम लो तो मुझे मारने के लिए दौड़े। तो कुछ लोग जो है मतलब महाप्रभु के अगेंस्ट हो गए और महाप्रभु के मतलब विरोध में आ गए। तो महाप्रभु ने देखा अरे मैं आया था इनको उद्धार करने के लिए और अब ये मेरे विरोध में जा रहे हैं, इसका मतलब क्या है, इनका उद्धार तो होगा ही नहीं। इसलिए इनको मुझे रिस्पेक्ट देना है, लेकिन अगर मुझे डिसरिस्पेक्ट करेंगे तो ये तो नरक में जाएंगे। तो इसी कारण महाप्रभु ने क्या किए, संन्यास लिए, ताकि लोग जो है अब उनको डिसरिस्पेक्ट ना करें। तो यहाँ पे देखा जाए तो महाप्रभु जो है संन्यास लिए किस लिए, कि उनके फॉलोअर बढ़ने के लिए है। बट मतलब जो इसके पीछे जो है वो गोल क्या था, कि लोग जो है भगवान से ज्यादा कनेक्टेड होंगे, है ना। तो इसी प्रकार फॉलोअर फॉलोअर होना कुछ जो है बुरी बात नहीं है। बट वो जो फॉलोअर है वो फॉलोअर किनका है, कृष्ण का है। जैसे भक्ति सिद्धांत सरस्वती प्रभुपाद जी को जब जो है हम्म, उन्होंने गौर किशोरदास बाजी महाराज कहे थे कि तुम शिष्य मत बनाना। लेकिन देखा जाए तो भक्ति सिद्धांत प्रभुपाद जी के बहुत सारे शिष्य हुए। तो भक्ति सिद्धांत प्रभुपाद जी कहते थे कि एक्चुअली ये जो शिष्य है वो मेरे नहीं है बल्कि मेरे गुरु के हैं, है ना। तो इसी प्रकार जन्म होना कुछ बुरी बात नहीं है। बट जब उस वो जन्म जो है वो फॉलोअर है, उनको हम कृष्ण के फॉलोअर कंसिडर करें, हमारे गुरु के फॉलोअर कंसिडर करें, ना कि हमारे फॉलोअर।
है ना। अगर हम अपने फॉलोअर कंसिडर करते हैं, दैट बिकम्स एन ऑब्स्टैकल फॉर आवर डिवोशन। सो आगे सुंदरी। देखिए, मुझे एक रामायण का इंसिडेंट याद आ रहा है। जैसे अ, अभी मैं जो है नासिक में था, 4-5 दिन पहले नासिक में था। और हम लोग भी गए थे, हमारे ईशान गौर को हम लोग भी गए थे 2019 में। इट वाज माय सेकंड विजिट। तो नासिक में देखिए, जैसे सुपर्णखा वो आती है, बहुत सुंदरी रूप लेकर आती है, और पहले भगवान जी को अप्रोच करती है, और भगवान उनको क्या करते हैं, लक्ष्मण जी के पास भेज देते हैं। तो इसका मतलब ये है कि भगवान जो है माया अर्थात सुंदरियों को आपके पास भेजते ही रहेंगे। प्रिंसिपल ये है कि आपको आपके पास भगवान जो है सुंदरियों को भेजते रहेंगे। लेकिन लक्ष्मण जी ने क्या कहा? लक्ष्मण जी ने कहा, नहीं 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 नहीं, मैं तो उनका दास हूँ, है ना, मैं उनका दास हूँ। और फिर आप कैसे उनके जो है, मतलब फिर आपको भी दासी बनना पड़ेगा ना। तो इसीलिए बढ़िया है कि आप उन्हीं के पास जाओ। है, तो लक्ष्मण जी ने क्या किया, वो सुंदरी को भगवान जी के पास फिर भेज दिया, है ना। इसका मतलब क्या है कि हमारे पास जो सुंदरी आएंगे, तो वो सुंदरियों को हम क्या करेंगे, हम भगवान के पास फिर वापस भेज देंगे, भगवान भेजेंगे हमारे पास, है ना। तो इसी प्रकार हम देखते हैं कि नामाचार्य हरिदास ठाकुर हैं, उनको जो है, उनको उनका फॉल डाउन कराने के लिए एक जमींदार था उस समय, रामचंद्र खान। उसने जो है क्या किया कि एक बहुत सुंदरी प्रोस्टिट्यूट, सबसे एकदम सुंदरी प्रोस्टिट्यूट को जो है उसने भेजा हरिदास ठाकुर जी का पतन कराने के लिए। हम्म। लेकिन हरिदास ठाकुर जो है, उन्होंने क्या कहे कि नहीं, मतलब उन्होंने कहा ठीक है, मैं तुम्हारा प्रपोजल एक्सेप्ट करूंगा, बट मैं क्या करूं, मेरे पास तो नाम जप बाकी है ना, मैं रोज व्रत लिया हूँ, रोज 3 लाख नाम जप करूंगा। तो जैसे ही जब खत्म होगा तब मैं आपका प्रपोजल को एक्सेप्ट करूंगा। तो तब तक तुम बैठ के जो है सुनते रहो। और रामाचार्य जो है जप रहे हैं, हरि हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जप रहे हैं, और वो सुन रही है। पहला रात बीत गई। तो हरिदास ठाकुर ने कहा, सॉरी, आज आज रात को फिर आना है, क्योंकि मेरा ना जप खत्म नहीं हुआ है। दूसरी सेकेंड नाइट भी ऐसे ही बीत गई। तो तीसरे नाइट में जब वो 3 दिन तक लगातार लगातार हरिदास ठाकुर जी का नाम को सुनती रही, और तीसरे रात जब बीती, तो वो जो है हरिदास ठाकुर के चरणों में समर्पित हो गई, और वो क्या है, एक भक्त बन गई। और रोज वो भी जो है 1 लाख नाम का जप करती रही। उसी प्रकार उर्वशी, उर्वशी जो है वो अप्रोच करती है किनको, अर्जुन को। हैं। और अर्जुन जो है उसको रिजेक्ट कर देते हैं, ऐसा कह के कि तुम तो जो है आप तो मेरे दादा के दादा के दादा के दादा, मतलब पुरुरवा के की स्त्री थी, तो उसी हिसाब से तो आप मेरी माँ लगती है। तो उसी प्रकार जो है वो अर्जुन जो है उर्वशी के प्रपोजल को रिजेक्ट कर देते हैं। तो इसी प्रकार हमें क्या करना होगा, एक तो हरिदास ठाकुर के उससे हम मतलब यही रियलाइज होता है कि हमें अपने आप को इतना इंगेज करना है, इतना इंगेज करना है कि माया के लिए हमारे पास टाइम ही ना हो। है, माया को हम बोलेंगे ठीक है, पहले हम भगवान की सेवा कर लें, और उसके बाद अगर समय होगा तो आपके पास आएंगे, लेकिन इतना समय देना ही नहीं है ना। और उसी प्रकार जो है अ, उर्वशी को जैसे अर्जुन ने कहा, तो उसी प्रकार हमें जो है माता के रूप में जो है स्त्री को देखना है। और अगर स्त्री के लिए देखा जाए तो पुरुष भी ऐसे ही है ना, मतलब ये जो सुंदरी है, ये सिर्फ पुरुष के लिए नहीं कहा गया है, ये ऑपोजिट सेक्स अट्रैक्शन के लिए ही कहा गया है ना। मतलब देखा जाए तो स्त्री पुरुष के लिए माया है, पुरुष स्त्री के लिए माया है ना।
दोनों एंगल से इसको देखा जाता है ना। मतलब दोनों दोनों कृष्ण के अंश है, बोथ आर फॉर सर्विस टू कृष्णा, बट ये गलत होगा जब एक दूसरे को, है ना, एंजॉय करने के लिए चाहेंगे, तो ये दैट 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 बिकम्स एन ऑब्स्टैकल। उसी प्रकार कविता है, कविता है, जो है ये कोला बचा श्रीधर है। कोला बचा श्रीधर को भगवान चैतन्य महाप्रभु जब 21 प्रहर का लीला हुआ था, उसमें कोला बचा श्रीधर को महाप्रभु पूछते हैं कि मांगो, तुम जो भी मांगोगे मैं देने के लिए तैयार हूं, मैं 3 लोक तुम्हें देने के लिए तैयार हूं। लेकिन कोला बचा श्रीधर ने कहा कि महाप्रभु मुझे बस इतना ही दीजिए कि मैं जन्म जन्म जो है मैं जो है केले का पत्ता और केले का जो दोना वो बेचता रहूंगा, और आप जो है आके मेरे साथ बार्गेनिंग करते रहो। महाप्रभु जो है जब छोटे थे तो जाके क्या करते थे, ये जो कोला बचा श्रीधर है उनके साथ बार्गेनिंग करते थे। एक तुम बहुत महंगा ले रहे हो ये केले का पत्ता, है ना, तुम जो है तुम बहुत मुनाफा कमा रहे हो, एक दिन मैं तो सबको बताऊंगा कि तुम कितने धनी हो। जबकि कोला बचा श्रीधर जो है, उनके जो कपड़ा था वो कपड़े में कई छेद था, तो उसको वो बांधते थे ना, जो छेद को बांधने के लिए बांधते थे हैं? और उनका जो घर था वो घर के ऊपर छत भी नहीं था, और उनके पास एक ही बर्तन था और वो बर्तन भी छेद था उसमें। है ना। लेकिन महाप्रभु इसी प्रकार उनके साथ जो है लीला करते थे। तो लास्ट में महाप्रभु जो पूछते हैं कि मांगो कोलाब शासीधर, क्या मांगना मांगो। तो कोलाब शासीधर क्या करेंगे, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस जन्म जन्म जो है आप आइए मेरे मेरे केले की दुकान में और केले के पत्ते की दुकान में, और आप जो है मेरे साथ बार्गेनिंग करें, है ना। सो दिस इज ब्यूटीफुल पास टाइम, है ना। और उसी प्रकार जन्मनी जन्मनी, है ना, इसी में क्या आता है कि डिजायर फॉर लिबरेशन, है ना, कि कोई जो, अगर हम कहते हैं कि नहीं मुझे तो ये जन्म नहीं चाहिए और जन्म नहीं चाहिए, मैं तो बस ये कष्टों से मुक्त होना चाहता हूँ, तो दिस इज ऑल्सो क्या है, एक सेंस ग्रेटिफिकेशन है ना। दामोदर अष्टकम में जो है सत्यव्रत मुनि लिख रहे हैं, मेरे पीछे आप लोग दोहरा सकते हैं। वरम देवो मोक्षम न मोक्षावधिम वा, न चान्यं वृणेऽहं वरेशादपीह, इदं देव पूर्णाथ गोपाल बालम्, सदा मे मनसा विरास्तां किमन्ये। पार्थिस मेहता प्रभु पढ़ सकते हैं। Although you give moksha, I don't ask for moksha, nor do I want anything you could bestow. I only request that your sweet childhood play ever be enacted in my heart to stay. हाँ, थैंक यू। तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप जितना भी जन्म दे दीजिए, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट मैं तो यही चाहता हूँ कि आपका ये जो बाल गोपाल रूप है, वो क्या हो, मेरे हृदय में हमेशा प्रस्फुटित रहे। तो भक्त जो है वो नहीं डरता है, मतलब जन्म जन्म लेने के लिए वो नहीं डरता है। एक बार तो एक शिल प्रभुपाद जी के शिष्य कह रहे थे कि वन लाइफ टाइम इज इनसफिशिएंट टू सर्व शिल प्रभुपाद। एक जीवन तो शिल प्रभुपाद जी को सर्व करने के लिए बहुत इनसफिशिएंट है, मुझे तो लगता है कि और भी जन्म लेना चाहिए प्रभुपाद जी को सर्व करने के लिए। तो इस प्रकार का मूड रहता है भक्तों के बीच में। सो बस 2-3 मिनट और है, जन्मनी जन्मनी है। तो इसी प्रकार यहाँ पे जो है बताया गया है श्रीमद् भागवतम 4:30-33 में, यावत्ते मायया स्पृष्टा ब्राह्मण यह कर्म भी, तावत् भवत् प्रसंगानाम संगस्यान्नो भवे भवे। Dear Lord, as long as we have to remain in this within this material world, due to our material contamination and wander from one type of body to another and from one planet to another, we pray that we may associate with those
who are engaged in discussing your pastimes. We pray for this benediction life after life in different bodily forms and on different planets. तो यहाँ पे जन्म जन्म लेने में कोई दिक्कत नहीं है, बट हमें क्या हो, हमेशा भक्तों का संग मिले, है ना। हम मतलब यही वरदान चाहते हैं कि बस हमें जन्म जन्म लेने में कोई दिक्कत नहीं है, बट हमें क्या मिले, भक्ति, जो है भक्तों का संग मिले। उसी प्रकार कपिल भगवान भी यहाँ पे अहेतु की भक्ति के, हाँ ये तो था जन्मनि जन्मनि। अब ये था व्हाट आई डोंट वांट, ये तो ऑब्स्टैकल था। तो मुझे चाहिए क्या है, मुझे चाहिए क्या है, अहेतु की भक्ति, है ना। तो ये कपिल भगवान कह रहे हैं, मदगुणा श्रुति प्रेण मयि सर्व गुहाशये मनोगतिर अविच्छिन्ना यथा गंगाम्भसो बुधौ लक्षणम भक्ति योगस्य निर्गुणस्य ही उदाहृतम अहेतुकी अव्यहिता या भक्ति पुरुषोत्तम है। अहेतुकी, अहेतुकी मतलब नो, जो है जैसे हम अ, पढ़ते हैं ना जो नेक्टर ऑफ डिवोशन में, कि जो है भक्ति जो है वो पूरा एकदम ज्ञान कर्मादि अनावृतम होना चाहिए ना। तो इसी प्रकार यहाँ पे है, मन्ये धनाभिजन रूप तप श्रुत जस तेज प्रभाव बल पुरुष बुद्धि योगा नर धनाय ही भवन्ति परस्य पुंस भक्त्या तुतोषो भगवान गज युथ पाय। Prahlad Maharaj continued, one may possess wealth, an aristocratic family, beauty, austerity, education, sensory expertise, luster, influence, physical strength, diligence, intelligence, and mystic yogic power. But I think that even by all these qualifications, one cannot satisfy the Supreme Personality of Godhead. However, one can satisfy the Lord simply by devotional service. Gajendra did this, and thus the Lord was satisfied with him. Yeah. तो ओनली अहेतु की भक्ति से जो है हम भगवान जी को आकर्षित कर सकते हैं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अब क्वेश्चन आर सेशन, यू कैन आस्क क्वेश्चंस। Any question you have? Otherwise, you can write in chat box also. Hare Krishna Prabhuji, am I audible? Yes. Thank you so much Prabhuji for such a wonderful session. Very amazing session Prabhuji. My question is, like Prabhuji, as you mentioned in the last, like what Srila Prabhupada, one disciple, Srila Prabhupada's disciple told to Srila Prabhupada. Sometimes Prabhuji, I don't have that word, but I get this thought कि एक जन्म में तो क्या ही होगा, अभी तो कुछ पता ही नहीं चला है। अभी तो इच्छा होती है कभी कभी ऐसे कि आना है, बट कभी कभी ऐसा होता है कि नहीं बहुत सफरिंग है, नहीं आना है। And also Srila Prabhupada says कि finish in this birth only. So Prabhuji, I am confused, not able to understand कि what should be our proper mode. एक टाइम पे ऐसा भी आता है, बताया जाता है कि भक्त को कहीं भी भेजा जाए और सेवा ही करनी है, सो भक्त वो नहीं देखता है कि कहाँ, बट कभी कभी ऐसा लगता है नहीं नहीं आना है, खत्म करना है। Thank you. Your question will benefit me and others also. So your question is actually this is a Lok Mangalam question. So thank you. So मेरा एक पास टाइम मुझे याद आ रहा है। तो अभी तो हम वही नासिक से आए हैं। तो नासिक में जब जटायु जटायु जो है वो जब सीता माता को रावण हरण करके ले जाता है, और जटायु जो है बहुत फाइट करते हैं, बहुत एकदम अपने 100% पोटेंशियल देकर फाइट करते हैं ना। तो फाइट करते हैं, लेकिन
रावण जो है बहुत पावरफुल था और वो उनका पंख काट देता है, उनका पैर वगैरह भी काट देता है, तो जटायु गिर जाते हैं। तो गिर जाते हैं तो बाद में भगवान ढूंढते ढूंढते आते हैं और आके जटायु को जो है क्या करते हैं, अपने अपने गोदी में रखते हैं। और गोदी में रखकर जो है उनको क्या करते हैं, उनको उनको कहते हैं, एक सेंटेंस कहते हैं, कहते हैं कि यू विल अटेन द एक्चुअल गोल। क्यों? क्योंकि आपने मेरे लिए प्राण दिया है। हम्म? क्योंकि भगवान के लिए, मतलब भगवान राम जी के लिए जटायु ने अपना प्राण दिया, और कितना कष्ट सहा होगा, है कि नहीं? तो क्या है कि तो एक्चुअल गोल जो है तभी मिलेगा जब आप जो है भगवान के लिए अपना प्राण देंगे, है ना? तो उसी से मैं फिर रियलाइज कर रहा था कि देखिए हमारे गुरु महाराज हैं, फिजियोलॉजी गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज हैं। तो देखा जाए तो मतलब लास्ट में सारे सीनियर डिसाइपल्स श्रील प्रभुपाद एंड सारे सीनियर डिवोटीज वो चाहते थे कि गुरु महाराज जो है थोड़ा रेस्ट करे, इतना एंजाइटी ना ले। बट गुरु महाराज जो है, आप देखे जानते होंगे कि कैसे गुरु महाराज जो है आप प्रकट हुए थे, हैं? तो ये जो है दिस इज द परफेक्शन ऑफ लाइफ, कि यू डेडिकेट योर लाइफ, आप अपने प्राण जो है वो भगवान के लिए दे रहे हैं, है ना? तो इसीलिए आप चाहे ये जन्म भी दे और ऐसे जन्म जन्म में भी आप अगर भगवान के लिए प्राण दे रहे हैं, जीवन दे रहे हैं, तो दैट इज द रियल परफेक्शन ऑफ लाइफ। डज दिस आंसर योर क्वेश्चन? यस प्रभु जी, थैंक यू यस। सो सो इसीलिए चाहे हमें नरक जाना पड़े, चाहे हमें कहीं पे भी जाना पड़े, बस बेसिकली हमारा मोटो क्या है कि हम अहेतु की भक्ति कर सके और भगवान की हम सेवा कर सके विथ प्योर इंटेंशन, ओनली टू प्लीज लॉर्ड, ओनली टू प्लीज गुरु परंपरा। दैट शुड बी आर गोल। और आर ना करी हो मने आशा। हम्म? अगर भगवान चाहते हैं ठीक है, अगर भगवत धाम में सेवा करना है, विल डू देयर। भगवान चाहते हैं नहीं तुम यहीं पे सेवा करो, यहीं पे करेंगे। भगवान चाहते हैं कि नहीं तुम नीचे के लोक में सेवा करना है, करेंगे, है ना? वी आर टोटली डिपेंडेंट ऑन हिज डिजायर। आर ना करी हो मने आशा, वी शुड नॉट हैव एनी अदर डिजायर देन दिस। इज इट क्लियर प्रभु? यस प्रभु जी। एनी अदर क्वेश्चन? आई एम सॉरी एक्चुअली मेरे पास टाइम भी कम था। पहले ईशान गौर को बोले थे हरिदास ठाकुर के पास टाइम लेना है, और फिर कल रात को अचानक आया कि इसके ऊपर लेना है, और वैसे भी टाइम कम था, हम थोड़ा लेट भी शुरू किए। बट होपफुली आप सबको बेनिफिट हुआ होगा, और आप लोग Prabhuji, मुझे Haridas ब्लेसिंग। Thakur is pending. We'll have one more class, elaborate class on Haridas Thakur. हाँ, These are हरिदास ठाकुर। pending since 2017. These are pending since 2017. It will take like at least 2-3 hours हरिदास ठाकुर के Yes, पास टाइम तो। Any comment, feedback or questions? nectar, Pardon? nectar, nectar.
Pastimes are always nectar and महाप्रभु के शिक्षाएं हैं, सब नेक्टर तो है ही है. We are just like radio. But radio without any noise, transmitting as it is. Well, thank you so much, Rosalie. We'll fix one session about tourism of Haridas Thakur. Maybe on a holiday we will arrange so that we can go longer, 2-3 hours stretch. Yeah, it can be also 2-3 sessions. Yes, that is also great. ओके, हरे कृष्णा. जगत विश्व प्रभुपाद की जय. जगदीश श्याम प्रभु की जय, प्रभुपाद की जय, नंदपुरी अच्छा. वैष्णव की जय. Let us express our heartfelt gratitude to His Jagdish Prabhu by once again loudly chanting Hare Krishna Mahamantra. Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna Krishna, Krishna, Hare Hare Krishna, Hare, Hare Hare Ram, Hare Ram, Ram, Ram Ram, 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 Hare Ram, Hare Hare. वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु चित्ति प्राणं. हरे कृष्णा. Thank you so much. राम 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 हरे कृष्णा. हरे राम हरे राम राम हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण